Today we will be studying about changes in the states of matter. Now, you all know that there are three states of matter, that is solid, liquid and gaseous state. Okay, now we will learn that how we can change from solid to liquid form and from liquid form to gaseous form. So now what happens when this solid, it melts, okay, then it forms water, and when we heat the water, then it forms its gaseous form. So this is with the temperature, okay, this is concerned with basically temperature, and regarding pressure you will be learning in higher classes. Now when we are increasing the temperature, so what is happening, that we are changing from solid state to liquid state and then from liquid state to gaseous state. So all that change in the state of matter is due to temperature increase. Now you see here the liquid form, that of water, is in water in its liquid state, that exists as water, and when we freeze it, when we keep this water in the freezer, when we are lowering the temperature, then it is becoming ice, and that is the solid form of water. Okay, so what is happening in this case, we are lowering the temperature. So this very process is called as freezing. Okay, so when liquid, it is when we are lowering the temperature of the water, that is the liquid form, and then it is changing into its solid form, that is called as freezing. Okay, freezing bolte hain isko. Now when we take out this ice and keep it at some normal temperature, or in other words we say that when we heat it, then it converts into its liquid form. So this very process of conversion of solid form into liquid form is called as melting. Okay, so when we are removing the heat, then from liquid to solid form, and that very process is called as freezing. ठीक है, liquid से जब हम solid बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, heat को remove कर रहे हैं, यानी कि temperature को कम कर रहे हैं, and this process is called as freezing. ठीक है, तो आइस जो है वो कब बनती है, जब फ्रीजिंग पॉइंट आता है. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, इतना ठंडा टेम्परेचर कर देते हैं, कूल कर देते हैं वाटर को, व्हेन वी आर रिमूविंग द हीट, देन इट इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट. ठीक है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट कैसे बन रहा है, बाय फ्रीजिंग, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. ठीक है, जब वाटर का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है. एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, ओके, देन इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, एंड दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. तो अब सॉलिड है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, तो जब उसको हीट करेंगे, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. मेल्टिंग बोलते हैं इसको. ओके, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है वो, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. तो सॉलिड कैसे लिक्विड बनता है, हीटिंग से, और लिक्विड कैसे सॉलिड बनता है, कूलिंग से. ठीक है, तो देखो जैसे आइस है, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो वाटर बन जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग. और इससे जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी लिक्विड से जो सॉलिड बनना है, ओके, लिक्विड से जब सॉलिड बनना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, उसको कूल करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे. सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट को ऐड करेंगे. ओके, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग. फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज melting. Okay, so this you have to learn these very definitions of melting and freezing. So from
change of state from solid to liquid, that is called as melting, and the opposite of that process of changing of liquid into solid is called as freezing. ठीक है, तो इसका अपोजिट है, दोनों आपस में प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. ओके, नाउ दिस इज द लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर. नाउ व्हेन वी विल बी हीटिंग द वाटर, तो जब हम वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, it will be changing into its next form, that is called as gas. ठीक है, तो अपनी कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द गैसियस स्टेट. ओके, एंड दिस वेरी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water into water vapors is called as evaporation. क्या बोलते हैं इसको, evaporation. तो water vapor कौन सा फॉर्म है, gaseous फॉर्म होता है water का, and the process of changing of liquid into its gaseous form, that is called as evaporation. देखो अब water को heat कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं. ओके, और फिर वो किस में चेंज हो जाए, वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है. यहाँ पे आप ये भाप देख रहे हो, तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स हैं ये. ओके, तो वाटर से वाटर वेपर्स कब बन रहे हैं, जब हम उनको हीट कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं. So by adding the heat, water, that is the liquid form, that will be changing into the gaseous form, that is water vapors. ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. जब वाटर को हम हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं. एंड दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन. जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वाटर के, ओके, सो इवेपोरेशन होता रहता है. एंड व्हेन वी जस्ट increase the temperature so much, we bring it to 100 degree Celsius, then it starts boiling. तो वो boil होना start हो जाता है उस time पे. Okay, so this very process is there. Now we use water in our day to day life. We all know the importance of water a lot. Okay, जो भी हमारी daily life processes हैं उसमें water involve होता है, water को हम use करते हैं. Okay, that is the liquid form. Liquid form है ये. Okay, now what is there, that now this very liquid form, if we want again back from the gaseous form, ठीक है, तो अगर अब गैसियस फॉर्म बन गई है हीटिंग से, अब हम उसको वापस चाहिए हमें वाटर. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of gaseous form back into liquid form, that is called as condensation. Now you see the water droplets on the windows in the cool winter morning. What is there, beta? That in the air around us water vapors are there. So whenever that water vapors they get the lower temperature, so they again change back into water. तो क्या होता है, हमारे आसपास जो है वाटर वेपर्स होते हैं, जब भी उनको ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो वो दोबारा से वाटर बन जाते हैं. एज यू सी इन नेचर ऑल्सो दैट वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज दे इवेपोरेट ड्यू टू सन्स हीट. ओके, वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है सन की हीट की वजह से, और जब वो ऊपर जाता है एयर में, जब उसको ठंडा टेम्परेचर मिलता है, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा से वाटर बन जाते हैं. ओके, एंड दे फॉर्म द क्लाउड्स देन. तो ये जो है नेचर में भी हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है. वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जब उसको सन की हीट मिलती है तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, और जब उन वाटर वेपर्स को कूल टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर मिलता है, तो वो दोबारा से जो है वो वाटर बन जाता है. ओके, सो व्हेन वी आर रिमूविंग द हीट, जब वाटर वेपर्स को हम ठंडा करेंगे, ठीक है, जब उनका टेम्परेचर लोअर करेंगे, उनकी हीट को रिमूव करेंगे, तो क्या बन जाता है, उसका लिक्विड स्टेट बन जाता है. So this very process is called as condensation. When we are removing the heat from the water vapors, then it is forming water. So that's all for today, beta. Thank you. Next we will be covering up in next topic. Thank you, beta.